जहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा जो होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंता प्रभु को महिमा कर ताड़ी देबा। आसना वाक्य माध्यम से जीवा पढ़ी मु लुक 17 टिके हिंदी रे पढ़ी देबा हना कि उठे पढ़ी दो शिखमा पढ़ी दो। लुक 17 11 11 ରୁ 19 टिके पढ़ी दो, हिंदी रे पढ़ी दो, ओडिया रे भी पढ़ी। जी, लुक मैं पढ़ रही हूँ लुका 17 का 11 से 19। लुका लिखित सुसमाचार 17 पर्व तार 11 ରୁ 19। पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ फिर उड़िया में। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ।
और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सब से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। Amen. Amen. से ओडिया ଦେଇଦେଇଛି ନା? ହଁ ସେ ଜିରୁସାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସମୀରଣ ଓ ଗାଲିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଯୀଶୁ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜକୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଫେରି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 10 ଜଣ କଣ ଶୁଚି ହେଲେ ନାହିଁ? ତେବେ ଆଉ 9 ଜଣ କାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅଣଜିହୁଦୀ ଲୋକଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ ଆଉ କେହି ଫେରି ଆସିନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉଠି ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଆମେନ୍। Amen. 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 प्रभुको नाम धन्य हो। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛୁ 10 ଜଣଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ କି ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସମୀରଣ ଓ ଗାଲିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 10 ଜଣ କୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଯୋଉ କୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କି ସେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ବାଟେ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତମେ ମାନେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ହଁ ସେ 13 ପଢୁଛେ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ହେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ, ହେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 14ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ଯାଜକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖାଅ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କି ଯୀଶୁ ତୁମେ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ କଣ କଲେ ନା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଯାଜକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବା ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ଯାଜକ ପାଖରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯୀଶୁ ଯିଏ କି ଗୁରୁ, ସେ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆସିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ସେ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଇଛି, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଯୋଉ ଯୀଶୁ କି ସୁସ୍ଥକାରୀ, ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁସ୍ଥ ହବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିବ ଯାଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ, କେତେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଥିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି
हाँ 15 କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ବାହୁଡି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଉବୁଡ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଣେ ସମରଣୀୟ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା କଲା, ଗୌରବ କଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେତେ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗତ ହପ୍ତାହରୁ ଆଜି ଗତ କାଲି ତକ ଆମେ ଯେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଆମେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲା କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିଥିଲା କି ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସମରଣୀୟ ଲୋକ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 10 ଜଣ କଣ ସୂଚି ହେଲା ନାଇଁ? ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମରଣୀୟ ଲୋକ, ସେ ବିଜାତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡିଯାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ 9 ଜଣ ନଥିଲେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରେୟାରରେ ଆମେ 4-5 ଜଏନ ହଉ, ତ ବହୁ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଜଏନ ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ କି 6 ଜଣ କି 7 ଜଣ କହନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ କଣ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ସେମାନେ କେବେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ସେମାନେ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୃହ ଯୋଉ ବାସ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେ ସବୁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ? ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି କାହିଁକି ହାତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ସେଇ 9 ଜଣଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ 25 ଜଣ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଲାଗି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ନୀଳିମା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଜୀବନରେ ସେ ଅଙ୍ଗେ ଆମେ ଲିଭେଇଛୁ, ସେ ସବୁ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ କହିବା। ଆମର ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଅନେକ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଗୌରବ ମହିମା ହବ, କିପରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା? ସେ ଆମ ଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାହାନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା, କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 17ରେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 10 ଜଣ କଣ ସୂଚି ହେଲେ ନାଇଁ? ହଁ, ତେବେ ଆଉ 9 ଜଣ କାହାନ୍ତି? ସେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଜି ଯୀଶୁ ବି ପଚାରିଥିବେ, ମୁଁ କଣ ନା ଧରିକି ମୁଁ କଣ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିନି? ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିନି? ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ କହୁଥିବେ। ଆଜି ଏତେ କମ ଜଣ ଖୋଜ, ଏତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଜାତି ଲୋକଟି ଛଡା କଣ ଆଉ କେହି ବାହୁଡି ଆସିନି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିଲେ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବା। ଯଦି ଆଜି ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଆମର ସହିତ ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଲାଗି ଯଦି ସେମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା? ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗେଇ ଆସିବା। 19ରେ ଲେଖାଛି, ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିପଦରୁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ। ଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମର ରଶ୍ମି ମା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିପରି ଥିଲା, ସେ ମରଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ସେଠାରୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଜି ଗୌରବ ତାଙ୍କର ଦେବା ଲାଗି। ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସେ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋର ମହିମା ଗୌରବ କରିବା ଲାଗି। କେତେ ବିପଦ, କେତେ ସମସ୍ୟା, କେତେ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ହଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି,
ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ସେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ମୁଖ ଖୋଲିବା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ୱିକ୍ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଗି ଆଉ ସେଇ ଗୌରବ ମହିମା ଦେବା। ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଗବାଇ ଦଉଛୁ, ଯାହା ଟେଷ୍ଟିମନି ଦଉଛୁ, ଯାହା କିଛି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଗି ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଆସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିବି, ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ସିମୁର କଥା କହୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଦିନ ମତେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଆଉ କଣ ସିମୁ 2 ମାସର ହେଇକି ତୋର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କି? ବୋଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେତେବେଳେ, ହଁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା, ମୁଁ ଏମିତି ତ କହିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ରହିଥା ମୁଁ ପୁଷ୍ପାକୁ ଫୋନ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାକୁ ଫୋନ କଲି, ପୁଷ୍ପା ସିମୁର ଯୋଉ ଏମିତି ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ସେ କହିଲା 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦିଦି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ତ ସେଟା ଭାବୁଥିଲି 1.5 ବର୍ଷର ହେଇକି ମୋର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2 ମାସ କି 1.5 ମାସ ପାଖା ଭିତରେ କହିଥିଲି। କହିଲା ନାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ କହିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି, ତାକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହଉ, ଗୌରବ ହଉ ତାଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଗି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେନ୍। ଆଉ କିଏ ଦେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟେ ଥିଲେ, କାଣା ତା ନା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଶିଖାମା, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ। आरती, हाँ मैं चेक कर देती हूँ सिस्टर, वो जुड़ी है हाँ कि नहीं। देख वो स्कूल से आती है तो जुड़ती है, नहीं है। मैं देखती हूँ, वो अगर आती है तो। नहीं, वो बोल के गई थी मैं 4:30 बजे जुड़ूंगी। हाँ 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 4:30 आज से ଝିଅଟା ବି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। हाँ, आज थोड़ा उसको चांस दीजिएगा। ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି ବୋଧେ, ସ୍ମୃତି ମା କହ। हाँ, सबको सलाम। और सबसे पहले मैं मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और इस सुंदर मौका दिया है परमेश्वर ने गवाही देने के लिए। और मेरे जीवन में गवाही तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जब स्टूडेंट थी, बेटी थी, तो उस टाइम का बाद में कभी मौका मिलेगा तो बोलूंगी। लेकिन आज मैं सिलो में जब से मैं ज्वाइन हुई, और सिलो में आके जो कुछ मुझे मिला है, और उसके बारे में मैं गवाही दूंगी। और कहाँ से शुरू करूं पता नहीं, मैं रखी हूँ पॉइंट करके। और मैं जब शादी करके आई 2020 में, तो शादी के बाद मेरा जो ससुराल में पहला बर्थडे था मेरा, उस पहला बर्थडे में यहाँ मेरे ससुराल में सेलिब्रेशन की। तब पास्टर जी को बुलाया गया था और पास्टर जी आए थे। तो उस दिन पास्टर जी ने बॉर्न अगेन के बारे में वचन दिए थे। और मैं हीराकुद को जब से आई शादी के बाद, मैं एक ऐसा माहौल ढूंढ रही थी, और कि मुझे एक अच्छा फेलोशिप चाहिए था, जैसे कि मैं प्रभु में बढ़ पाऊं। क्योंकि यहाँ जब आई तो मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा था। घर पे तो प्रेयर करती थी, वचन पढ़ती थी, और मेरी मम्मी मैं सोती थी तो भी मैं जानती थी कि वो 4 बजे से उठ के वो प्रेयर करती थी। तो उसको मैं देख के उसके मतलब मैं बहुत इंस्पायर होती थी
मेरे मम्मी से, तो मेरे मम्मी के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसके लिए मैं बहुत आगे बढ़ चुकी कि प्रभु में बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत दुखी होती थी। हाँ, अच्छा लाइफ पार्टनर तो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन मतलब जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य रूप से मेरे बर्थडे के दिन, पहला बर्थडे जो था यहाँ आके, उस दिन ही परमेश्वर ने अपने जो संतान को, अभिषिक्त संतान को मुझे मेरे पास लाए। और उस दिन वचन के बाद मतलब जो वचन बोल रहे थे कि मैं सुन के मुझे तो लग रहा था कि कुछ तो खास है पास्टर जी के अंदर। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक मतलब फेलोशिप मुझे देने जा रहे हैं और बोल के मैं बहुत खुशी हुई। और फिर उस दिन वचन जब खत्म हुआ उसके बाद मेरा आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रही है सिस्टर, लेकिन वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है। हाँ, कंटिन्यू रखिए, आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है। फिर जब वचन खत्म हुआ और पास्टर जी ने प्रेयर करने लगे, तो उस प्रेयर के टाइम पे जो एक माहौल हुआ, एक जो परमेश्वर का उपस्थित मिला, और बहुत ही अच्छा एक आत्मिक पिता परमेश्वर ने दिया है और एक सिलो परिवार भी दिया है। फिर मैं उस दिन जो एक्सपीरियंस की, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, और मैं मतलब इतना खो गई और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब आत्मा में उस दिन मैं फील कर पाई कि नहीं, परमेश्वर यहाँ मेरे साथ है बोल के। और फिर 1 साल जब हो गया मेरे शादी को, 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर ही मैं इस गवाही बहुत 1-2 बार शायद दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगी क्योंकि परमेश्वर का महिमा होता है गवाही देने से। और जो नए बहन लोग जुड़ते हैं वो और भी एनकरेज होंगे कि सच में सीलों के द्वारा परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। और मेरे शादी के 1 साल के बाद जब मैंने 2 बार प्रेगनेंसी का टेस्ट की थी तो वो नेगेटिव आया था, और मैं थोड़ा उस टाइम दुखी हो जाती थी कि मैं सोचती थी कि कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे हेल्थ में। तो आजकल तो प्रेगनेंसी का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मेरा भी ऐसा कुछ हुआ है क्या जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है बोल के बहुत सोचती थी। फिर मैं ऐसे बोलती थी कि कुछ प्रॉब्लम है शायद जो नहीं हो रहा है बोल के मेरे हस्बैंड को बोलती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं, ऐसा है तो हम दिखा देंगे डॉक्टर को। डॉक्टर को जब दिखाएंगे बोलते थे तो मैं सोचती डॉक्टर को क्यों दिखाऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी बोल के सोचती थी। और मैं प्रार्थना करती थी भी उस विषय के लिए, और मैं जिन जिन के लिए प्रेयर करती थी उनके सब पॉजिटिव रिजल्ट आता था और मैं बहुत खुशी होती थी। फिर दुख भी होता था कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है बोल के। और मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करती थी, मेरे रूम पे बैठ के घुटनों में आके मैं मेरे दोनों हाथ को फैला के, परमेश्वर आपका जो गिफ्ट है वो मुझे भी दीजिए बोल के मैं बहुत प्रार्थना करती थी। और फिर बाद में हम दोनों भी मिलके प्रार्थना किए इस विषय को लेके। फिर इसका रिजल्ट जब आया, मेरा जो प्रार्थना का उत्तर, हम दोनों का प्रार्थना का उत्तर, वो ऐसा एक दिन में हम उत्तर को पाए, वो भी मैं बोलना चाहूंगी। और कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद मेरे सासू माँ का बहुत तबीयत बिगड़ गया, बहुत बीमार पड़े वो। और
बहुत सारे डॉक्टर को हम दिखाए, मेडिसिन बहुत कुछ किए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर उससे पहले जब हमारे शादी ठीक हुआ था, ठीक होके एक सेरेमनी भी हुआ था हमारे, वो जो चूड़ी पिन्हानी बोलते हैं, उसके बाद मेरे पापा जो कि ससुर जी, उनका डेथ हो गया, वो नहीं रहे। फिर हमारा एक्सटेंड हो गया 1 साल से भी ज़्यादा शायद। फिर उनके, मेरे हस्बैंड के बड़े पापा, बड़े मम्मी, वो लोग भी बहुत ही जल्दी, मतलब उनका डेथ हो गया था, वो लोग नहीं रहे। फिर जब मैं शादी करके आई, फिर शादी करके जब आई तो मेरे हस्बैंड के जो बड़े दीदी हैं, बड़े पापा का बेटी, उनके भी हस्बैंड का डेथ हो गया। ऐसे करके सब नेगेटिव सिचुएशन है फैमिली में। फिर हमारे शादी के 1 साल के बाद मेरे सासू माँ का भी तबीयत बिगड़ गया और इतना सीरियस हो गई, मतलब बेड से उठ नहीं पा रही थी। और उस टाइम पे पास्टर जी आए थे, हमारे स्पिरिचुअल मदर के साथ दोनों आए थे और हमारी सिचुएशन देखे, प्रार्थना किए और फिर वो एक डिसीजन लिए और हमको बताए कि नहीं, परिवार में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशन जो भी आ रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक अल्टर प्रेयर रखना है। मुझे परमेश्वर ने बता रहे हैं कि 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखना है बोल के पास्टर जी ने बोले। फिर पास्टर जी ने ऐसे बोले कि फैमिली के सारे लोग इस प्रेयर में शामिल होंगे। तो हम दोनों ने, वाइफ हस्बैंड, हम बात किए और आज हमारे परिवार में दुख है, आज हमारे परिवार में चंगाई का जरूरत है और हमको ही करना पड़ेगा, ये बोल के हम बात किए। और उस टाइम पे घर के बहुत सारे लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं लेते हैं, बाहर क्यों नहीं लेते हैं, वो नहीं जानते थे कि हमारे सिचुएशन क्या था फाइनेंशियली। और अकेले उनका, मतलब मेरे हस्बैंड अकेले कैसे सब कुछ हैंडल कर पाएंगे, ड्यूटी भी था, कंपनी जब था, बहुत दिन छुट्टी भी नहीं ले पाएंगे। और उस टाइम पे हम दोनों ने डिसीजन लिए और नहीं, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ही हमारे साथ है और सब कुछ परमेश्वर करेगा। और पास्टर जी को जो एडवाइस था, जो बोले थे हमको, हम उसको बहुत सोचे और हम प्रार्थना किए 2 जन और हम डिसाइड किए कि नहीं, हम 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर करेंगे और घर के सारे लोग को हम बताए ये, और हम अरेंज किए 3 दिन फास्टिंग प्रेयर के। हमारे साथ पास्टर जी और हमारे स्पिरिचुअल मदर भी दोनों भी फास्टिंग प्रेयर में शामिल हुए। और उस 3 दिन में पास्टर जी ने जो वचन दिए कि अंधकार से ही उजियाला आता है, और उसके बारे में लेकर बहुत सारी चीज बताए और मैं बहुत आशीष की तरह, हम 3 दिन, हम जितने भी हमारे परिवार के लोग थे, हम इतना खो गए थे वचन में कि मतलब हमको उस टाइम पे याद भी नहीं था कि मेरे सासू माँ है बेड पे, उनका तबीयत ठीक नहीं है बोल के, बस हम वचन में खो गए थे। और फिर 3 नंबर दिन में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोले मैं टेस्ट करने के लिए किट लाया हूँ और टेस्ट कर दो। तो लास्ट डे में, मैं फास्टिंग टेस्ट का लास्ट डे में मैं टेस्ट की तो उस दिन पॉजिटिव आया मेरा रिजल्ट। तो हालेलुया। हम कब मांगते हैं और परमेश्वर हमको कब देता है, उन परमेश्वर हमारे वो जो हमारे लिए कौन सा समय उत्तम है वो जानता है और वो ठीक टाइम पे ही देता है। तो लास्ट डे में परमेश्वर ने 3 दिन हमको, आत्मा में भी हम भर गए थे, वचन में भी पूरा खो गए थे, वचन को हम हमारे जीवन में रिसीव भी किए और लास्ट डे में मैं वो रिजल्ट को पाई जो हमारा प्रार्थना का उत्तर था। वो जैसे कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 127 का 3 में जो लिखा है, उस फल को परमेश्वर ने मेरे गर्भ में दिया और हम बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद हम कुछ दिन हो गया
कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब भी हो गया। उसके लिए भी हम बहुत प्रेयर करते थे, बहुत सारे लोग भी प्रेयर करते थे उनके परमानेंट जॉब के लिए। और उनके मम्मी तो हर बार बोलते थे कि ये कैसा करेगा, और उसके पास एक अच्छा जॉब नहीं है। मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि जरूर होगा, और बैंक पे ही जॉब होगा, बैंक में ही तुम जॉब करोगे, ऐसे बोल के मैं उनको मतलब सांत्वना देती थी। और हम दोनों ने उस दिशा के लिए भी प्रेयर करते थे। और कुछ दिन, कुछ, हाँ, 1 महीने के अंदर ही उनका जॉब भी हो गया बैंक पे। फिर उसके बाद जॉब होने के बाद हमको, मतलब मेरा जो प्रेगनेंसी का जो पॉजिटिव रिजल्ट है, तो मैं उस दिन से मतलब मेरे लिए ही मैं चिंता करती थी, और मैं ज्यादा अपने आप का केयर लेती थी। हम भूल गए थे कि मेरे सासू माँ बीमार है। हम पूरा विश्वास किए थे, और हम मतलब सोचना भी छोड़ दिए थे कि वो बीमार है बोल के। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है कि मेरे परिवार में, मतलब मेरा पॉजिटिव रिजल्ट, फिर गवर्नमेंट जॉब, फिर मेरी सासू माँ इतना जल्दी, कुछ दिन के बाद ही वो अपने आप उठे। फिर तुरंत ही वो स्कूल भी गए, ड्यूटी गए, सब कुछ। खाना भी छोड़ दिए थे, नहीं खा रहे थे, लेकिन वो खाना अपना सब कुछ चालू कर दिया। और परमेश्वर का मतलब इतना आशीष और इतना अनुग्रह हमारे जीवन में है, सच में। चाहे वो माने या ना माने कि परमेश्वर उनको चंगाई दिया है, लेकिन मैं सच में गवाह हूँ इस परिवार में आके कि परमेश्वर कैसा अनुग्रह करता है, और परमेश्वर कैसे मतलब वचन में बोल दिया है, ऐसे नहीं काम करके भी हमारा परमेश्वर दिखाता है। और सच में मैं देखी हूँ, और मैं गवाह हूँ कि परमेश्वर बहुत आशीष किया है इस परिवार को। और एक बार नहीं, उसके बाद जब मैं शादी करके आई, और 1 साल के बाद ही वो बीमार में पड़े। फिर दूसरे साल में देवोरा, जो मेरी बेटी, वो आई। उस टाइम पे भी उनका तबीयत फिर बिगड़ गया। उस टाइम पे भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और हम हॉस्पिटल में दिखाए, बहुत कुछ किए, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन सच में मैं परमेश्वर को दिल से, और सिलो परिवार के हर एक माँ लोगों को, और जितने लोग भी प्रेयर किए हैं मेरे परिवार के लिए, उनके लिए बोझ उठाए, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सच में सिलो परिवार के जितने लोग हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत ही मतलब एक इतना बड़ा दिल दिए है, और इतना मतलब एक दूसरे के लिए जो इंटरसीड करते हैं, बोझ उठाते हैं, सच में ऐसे मन दिए हैं। और मैं सबके लिए परमेश्वर को और आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। उस टाइम हमारे स्पिरिचुअल मदर भी मुझे बहुत समझाते थे। मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी ये सब। मैं बहुत डरती हूँ, कोई बीमार पड़ता है तो मैं घर पे भी बहुत डरती थी, और मेडिकल तो मैं कभी नहीं जाती थी। कोई बीमार पड़े तो भी मैं देखने नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ सब हैंडल करना, बाप रे, मेरे लिए बहुत ही मतलब कठिन समय था। और क्योंकि वो जैसे होते थे, उनका तबीयत मतलब वोमिटिंग जब होता था तो ऐसे होते थे कि संभालना बहुत मुश्किल होता था। और हमारे स्पिरिचुअल मदर और हमारे आत्मिक पिता पास्टर जी ने भी मुझे बहुत समझाते थे, और सांत्वना देते थे वचन से, कुछ वर्ष बता के भी। और फिर मैं, हाँ, मतलब और ज्यादा नहीं सोच के मैं मुझे जो करना है उस काम पे मैं कंसंट्रेट कर पाती थी। और उन दोनों के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब इतने अच्छे आत्मिक पिता और माता दिए हैं परमेश्वर ने मुझे। और उसके बाद वो उस टाइम पे भी वो चंगी हो गई बीमार से। लेकिन इस बार भी, इस साल फिर से वो बीमार पड़े, और इस साल भी इतना उनका तबीयत बिगड़ गया। पहली बार जो बीमार पड़े थे बिल्कुल ऐसा ही। फिर
हमारे आत्मिक पिता और खास करके मैं स्पिरिचुअल मदर को धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे बोले कि नहीं, हम इंटरसीड करेंगे, इंटरसीड प्रेयर बेटा, और ज्यादा कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है बोल के बोले। और हम सिस्टर शिखा और सिस्टर मधु, पास्टर शिखा, सिस्टर मधु और सिस्टर रश्मिता आंटी, नीलिमा सिस्टर, मैं और मेरे हस्बैंड, हम इतने लोग 2 दिन ही बस इंटरसीड किए, बस 2 दिन, और 2 दिन के अंदर उनके जीवन में हम चंगाई को देखे। सच में मैं सीलो परिवार में आके वो जो इंटरसीड क्या होता है मैं नहीं जानती थी, लेकिन इंटरसीड करने से परमेश्वर कितना जल्दी हमको रिजल्ट दिखाता है, वो मैं खुद गवाह हूँ। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि फिर से इस तीसरी बार भी जब वो बीमार पड़े, परमेश्वर ने हमारे इंटरसीड प्रेयर को 2 दिन में ही हमारे रिजल्ट को दे दिया, और वो अभी तक बहुत चंगाई, पूरा वो चंगाई पाई, अभी तक वो बहुत ही अच्छे से है। और सच में मैं सीलो परिवार में जब जुड़ी, और आज तक परमेश्वर ने मेरे परिवार में और मेरे जीवन में बहुत अनुग्रह किया है। जैसे कि वचन ही खुद यीशु है, और यीशु को जानना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, वो मैं सीलो परिवार में आके ही मैं समझ पाई और जान पाई कि बीज बोना, अल्टर क्या है, परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करना क्या है, और सेक्रीफाइस करने से क्या होता है, क्या मिलता है, और बहुत सारे चीज पास्टर जी ने वचन के द्वारा बताए हैं, और मैं हर एक वचन को समझ पाई हूँ सीलो के वजह से। और परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया है कि सब समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए मुझे मदद किया है परमेश्वर ने, और बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और हमारे पास्टर जी के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग को भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी मतलब अल्टर क्या है, अल्टर करने से क्या होता है, वो सारी चीज को आप लोग भी एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस की हूँ और उसका रिजल्ट भी मैं पाई हूँ। और जैसे कि अभी भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया है मुझे, और एक बार हम दोनों को पापा मम्मी बनने के लिए सौभाग्य दिया परमेश्वर ने, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस बार भी एक बार नेगेटिव आया रिजल्ट, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे जो सिस्टर मधु है, वो मुझे बोले कि कुछ नहीं बेटा, जल्दी देखना, तुझे जल्दी परमेश्वर फिर से देंगे बोल के बोले थे। और सच में मैं उस टाइम पे मैं बोली परमेश्वर को कि परमेश्वर आपकी इच्छा है, और आपके सामने हम दोनों ने आपके पास एक वेदी निर्माण कर रहे हैं, एक अल्टर रख रहे हैं, और आपकी इच्छा है तो हमको देंगे दूसरा बच्चा। और एक्चुअली हमारे दोनों की इच्छा थी कि हम दोनों मतलब 2 बच्चे साथ में पलेंगे, बढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, ऐसे बोल के सोचे थे। और बस हम अल्टर रखे और प्रार्थना किए, और सच में परमेश्वर बहुत ही जल्द हमको फिर से एक उनका वो गिफ्ट को परमेश्वर ने दिया है। और वो जो देबोरा भी, जब मैं पहली बार जब प्रेगनेंसी मेरा साथ थी, तो उस टाइम पे भी मुझे पूरा ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे एक बेटी ही देंगे बोल के। और सच में मैं उसको पाई भी। और सच में परमेश्वर हमारे सोचने से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, मांगने से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को भी फिर से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने बोझ उठा के मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। ऐसा डॉक्टर को धन्यवाद दबा, इतनी सुंदर गवाही लगी।
ଆଉ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳି ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା। ସ୍ମୃତି ବେଟା ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ତାହା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା 10 ଜଣ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, କଣ ଜଣେ ଆସିକିରି କଣ ତାଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତା କି? ଆଜି ଆମେ ତାହା ପଢୁଛୁ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପଢୁଛୁ, ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଘଟିଥାଏ ଅଘଟଣ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗବାଇ ଲାଗି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ହୋସନା ସିଷ୍ଟର, ହୋସନା ଦେବେ, ହଁ, ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଲୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମାଉସୀ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ନାଇଁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଲୁକ 17ର ସେଇ 14 ଆଉ 19 ପଦଟା, ବାକି ପଦ ତ ସବୁଠି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ 14, 19 କହୁଥିବା ସମୟରେ ମତେ ଟଚ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଯାଜକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଯାଉ ସେମାନେ ସୂଚୀ ହେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, 19ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 19ରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ତୁ ଉଠି ଚାଲିଯା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେଇ ବିଷୟଟା ମତେ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦର ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲା। ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିଲା, ଏଇ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଲା, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦ୍ଵାରା ସେ ଡବଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମତେ ଏଇ ବିଷୟଟା ମୋ ଭିତରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ଗୋଟେ ପଡିଲା, ତେବେ ଅନେକ ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ମତେ ସମୟ କମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ସହିତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି, ମୋ ମା କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଯୋଉଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିବି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିଥିବି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ମୋ ନାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ନାନୀକୁ କହୁଥିଲି ଆଜିକା। ଆଉ ଆମେ ସିଲୋ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧୁ ଦିଦି କାଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଦିନେ ଯେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପୁରା ସେୟାର ହେଇଯାଉଛି ସବୁଆଡେ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହ ପାଉଛନ୍ତି, ବଳ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ବୋଲେ ସେ ବିଷୟ ମାନେ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ମନେ ପଡିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେ ମା କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କହୁଥାଏ, ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ମା କୁ କହିଲି, ମା ଆମ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ବସିଛି ମା ସହିତ, ଆଉ ମା କୁ କହୁଛି, ମା ଆଉ ଦେଖେ ଯୀଶପା କେନ୍ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ଗାମୁଛା କାଢିକି ପାଦ ଧଉଛନ୍ତି। ମା କହିଲା କାହିଁଛି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମା ଦେଖେ ନା ଦେଖେ, ହେଇଠି ଦେଖ ତୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରୁ ବୋଲିକରି କହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନେ ମୋ ମା ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲି, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ଯୀଶପା କୃଷ ବହନ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ମୋ ମା କୁ ଦେଖେଇଲି, ମା କଣ କଲା କି ନା ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ମା ସହିତ ମୋ ରନ୍ଧା ଘରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥାଏ, ଆଉ ମା କୁ କହିଲି
ମା ଦେଖେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ମତେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ରାସ୍ତା ଥିଏ ଚଉଡା ରାସ୍ତା ଥିଏ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ତାର ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସରୁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସରୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଆଗରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ପୁରା ଲାଇଟ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲିକରି ମାକେ କହିଲି। କହିଲା ମା କିଛି ବୁଝିନି ପାରିଲା ଦେଖିନି ପାରିଲା। ହଁ ତୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖେ ବୋଲି କହିଲା। ତେବେ ସେଥିର ରବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୋଇବା ବିଷୟ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ପାଦ ଧୋଉଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋ ଅର୍ଥାତ କ୍ଷମା ଦେ ବୋଲିକରି ମତେ ସେଇ ରବ ଆସିଲା। ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ ବୋହିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିକା ତୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ ବହନ କର ଆଉ ଏଇପରି ତୁ ଆପଣା କୃଷ ବହନ କରିକି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲାଣି ତ ସେ ଗେଟ ଖୋଲିବା ଲାଗି କି ଇଏଟା ହର୍ନ ମାନୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କି ତୁ ହଁ ସେ ସରୁ ରାସ୍ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଅଛି ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପାଇଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏଟା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ସେଟା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ସେଟା କହିଲେ। ତେବେ ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଥିବାରୁ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆମେନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ତା ଯେପରି ସଫଳୀକୃତ ହବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଗୌରବ ମହିମା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ ମହିମା ହଉ। ଆଉ ଜଣେ ଗୌରୀ ସିଷ୍ଟର ବୋଧେ ଗୌରୀ ମା କୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ସାଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋ ଟେଷ୍ଟିମନି ହେଲା ଯେବେ ଆମର ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ରୋଜଗାର ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଚଲାଉଥିଲେ ମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ପୋଷଉନଥିଲା ଠିକରେ ମାନେ ସେତିକି ରୋଜଗାର ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି ନେଇଯା ତୋ ନିଜ ନାଁରେ କରିଦେ ଆଉ ତୁ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଟେନସନ୍ ନେ ନା ତୁ ଯେବେ ଦେଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାତ୍ର ନିଜ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ପେଟ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିକିରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସରିଗଲା ତ ଟେଷ୍ଟିମନି ଗୌରୀ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁହ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲି ଆଉ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ପୁରାତନ ନିୟମ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ମାନେ ପଢ଼ି ବି ହଉନଥାଇ ମାତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଲି ପେଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ ସେଇଭଳି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲେ ଆଉ ମତେ ଖାଲି ଏମିତି ଅନଉଥାନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ସେ ଉଷୁମ ସେ ଗରମ ପୁରା ଏମିତି ସେଇ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ପଢିଲା ବେଳୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ପେଲିଲା ଭଳିଆ ସେ ନିଆଁ ଭଳିଆ ସେ ଜିନିଷ ସେମ ଟୁ ସେମ ପୁରା ସେମିତି ଆକା ବସିଛି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ଏମିତି ବସିଛି ମୋ ପାଖରେ ମତେ ଅନଉଥାଏ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ କଣ ଶୁଣୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କାନ୍ଧେଇଲେ ଯେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିକିରି କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଣ ଯାଇଥିଲ କି
ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ଆକା। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଯୋଉ କହନ୍ତି କ'ଣ ସେଟା ସୁଗନ୍ଧି ନ୍ୟାୟ କି ତାରା ପ୍ରଭୁ ଉଠାଏ ଧୂଆଁ ଯୋଉ ସେଭଳି ମୁଁ କହିଲି ସୁଗନ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖି ମାନେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମାନେ ସତରେ ମାନେ ଏମିତି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। Amen, amen, amen. ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଜୀବନରେ ଟେଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। Amen. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଗୌରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରୀଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମହାନ, ସେ ଆସନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟିମନିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା କରତାଳି ଦେଇ। ଆଉ ଏବେ ଆମ ନୀଳିମା, ନୀଳିମା ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବେ। सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि जब हम आगरा में थे तो एक दिन मेरी बेटी का छुट्टी था, तो उसने कहा कि मुझे एक वर्ल्ड विजन के स्टाफ थे, तो उनके उनके यहाँ भी एक बेटी थी, तो उसने कहा कि मुझे उनके घर में छोड़ दीजिए। तो ऐसे 9-10 बजे करीब तनिष्का के पापा ने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। और दिन भर वो वहाँ पे रही और मैं और मेरे हस्बैंड हम घर में थे। तो मैं उस टाइम सिलो में नहीं जुड़ी थी। लेकिन मैंने यूट्यूब में पास्टर जी का एक मैसेज देख रही थी। तो उस मैसेज में पास्टर जी होनोक के बारे में बोल रहे थे और वो प्रीचिंग कर रहे थे और बीच-बीच में एक वर्शिप कर रहे थे। और वो वर्शिप मतलब वो वर्शिप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद शाम हुआ और मैं और मेरे हस्बैंड गए बेटी को लाने के लिए और हम लोग बेटी को लेके वहाँ से आ रहे थे और हम लोग बाइक में थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ऐसे बाइक में आ रहे थे और एक जगह पे एक गड्ढा था। तो वहाँ अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड सोचे मैं अगर ब्रेक दबाऊंगा तो भी गिरूंगा, नहीं दबाऊंगा फिर भी गिरूंगा। और हम लोग जैसे जा रहे थे तो वहां पे गाड़ी स्लिप हुआ और हम तीनों वहां पे तीनों जोरदार से वहां पे गिरे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे ही हम लोग वहां पे गिरे, मैं पहले देखी कि मेरी बेटी कैसी है, तो फिर देखा तो वो ठीक है। फिर मैं अपने हस्बैंड के पास आई, तो मैं उनको उठा रही हूँ, शायद 1-2 मिनट तक वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो फिर धीरे से फिर वो उठे और हम लोग तीनों देखे कि हम तीनों ठीक हैं। और जैसे उसी टाइम बहुत सारे लोग भी आए और उसी टाइम ही एक पुलिस गाड़ी वहां पे आ गया। कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन उसी टाइम में आ गया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने पूरा मुझे, मेरे हस्बैंड को और बेटी को अपने गाड़ी में बिठाए और जो बाइक था वो एक पुलिस आए और वो बाइक को लेके गए और हम पुलिस गाड़ी में बैठे। और उन्होंने कहा हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला, तो फिर हस्बैंड ने मना किया, नहीं हम लोग बाद में दिखा देंगे बोल के। फिर उन्होंने पूरा घर तक लाए और घर में छोड़े। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन उनके चेस्ट में थोड़ा लगा था और दर्द हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे जब उन्होंने जब उनका एक्सरे किया
तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। और इसलिए भी मैं Praise the परमेश्वर Lord. को Hallelujah. धन्यवाद देती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ वो वर्शिप था, परमेश्वर ने उस दिन उस वर्शिप को मेरे जीवन में पूरा किया। जैसे वो था करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। यही वाला वर्शिप था। परमेश्वर ने उस वर्शिप को उस दिन मेरे जीवन में पूरा किया और मुझे, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को सही सलामत घर में पहुंचाया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत आज से धन्यवाद देती हूँ। Amen. एमए मैं और एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड के बारे में। और वही आगरा में ही थे। और उनके जो क्वेश्चन था, थाई उनके जो थाई होता है ना, तो उस टाइम उनका बहुत टूरिंग जॉब था, तो वो बहुत ट्रैवल कर रहे थे। तो उनका जो थाई था वहां पे मशा या ऐसे मतलब बहुत सारा थाई में बहुत सारा ऐसे निकल गया था, पूरा फैल गया था। और उस दिन संडे था और उसके बाद वो घर में किसी को नहीं बोले और वो डॉक्टर के पास चले गए। एक शायद होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, तो उनको दिखाए तो उन्होंने देखा और बोला ये तो बहुत सारा है, ये तो मतलब ऐसे मेडिसिन से क्योर नहीं होगा, इसको एक एक करके इसको जलाना पड़ेगा और ये बहुत मतलब पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, ऐसे बोले। और ये इसको आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। तो फिर ये बात जब सुने तो थोड़ा डर गए और फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जो एलोपैथी डॉक्टर थे उनके पास गए। तो वहां पे जब रिसेप्शनिस्ट के पास गए तो वहां पे उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं दिखा सकते, इतना लाइन है कि आपको नेक्स्ट मंथ में दिखाना पड़ेगा। लेकिन उनको टूर में निकलना था, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बोल के फिर वहां से चले आए। और जब वो बाइक से आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये तो जगत का डॉक्टर है, लेकिन हमारा प्रभु तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, ऐसा बोले। और वो फिर घर आ गए, किसी को कुछ नहीं बोले, अपना बैग पैक किया और अपने टूर में निकल गए। और जब वो होटल में पहुंचे तो नेक्स्ट डे जब सुबह अपना पर्सनल प्रेयर कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास पानी लिया और उस पानी को उन्होंने प्रेयर किया और उनके जो थाई में जो सब निकला था उस सारे में अप्लाई किए। सचमुच हमारा परमेश्वर है, हमारे सोच से कहीं ज्यादा काम करते हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। नेक्स्ट डे ही मतलब नेक्स्ट डे ही सारा निकल गया था, कुछ भी नहीं था। सचमुच मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे जो लाइफ पार्टनर दिया है उनके लिए मैं बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनका विश्वास के द्वारा मैं प्रभु में विश्वास किया। जैसे वचन में लिखा है हस्बैंड के द्वारा वाइफ विश्वास, अगर अविश्वासी वाइफ है तो हस्बैंड के द्वारा विश्वास करेगी, और अगर हस्बैंड अविश्वासी है तो विश्वासी वाइफ के द्वारा वो उद्धार पाएगी। सचमुच ये वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया है। और मैं परमेश्वर को ये दोनों टेस्टिमनी के द्वारा मैं धन्यवाद देना Amen. चाहती हूँ। Amen. 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 आसुना माने एते सुंदर
गवाई लगी प्रभु को धन्यवाद देवा करताली दे हमारे परमेश्वर महान से सबो एतिरे रक्षा करिया परमेश्वर। हाँ हाँ टिकी माँ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आज के हर एक टेस्टिमोनी से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे और मैं मेरा गवाही दे रही हूँ और इससे परमेश्वर बहुत ही महिमा पाए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था मेरे ननद के लिए और हम निकल गए वहां गए तो देखे कि वो लेटी हुई थी और बिल्कुल ताकत भी नहीं थी, बहुत ही वीक थी वो। फिर उसने बोला कि मेरे लिए प्रेयर कर दो बोल के। तो उसके बाद मैं प्रेयर की और वहां पवित्र आत्मा की वो अभिषेक हम तीनों में, मैं मेरे ननद और मेरे हस्बैंड वहां थे, हम तीनों में भरपूर से था। और मैं प्रेयर की और उसके बाद मेरे हस्बैंड प्रेयर किए और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि वो मेरे ननद के नजदीक ही यीशु क्रस के साथ वो अपना क्रूस सहित तो वो ऐसे जैसे खड़े होते ही खड़े हैं। वो देखे और वो इतना रो रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, रो रो के वो प्रेयर कर रहे हैं। उस जगह का माहौल ही कुछ दूसरा हो गया था। फिर उसके बाद हमारा विश्वास भी और भी ज्यादा बढ़ गया था वो प्रेयर करते वक्त। और वहां से फिर हम निकल आए। फिर हम सोए हुए थे और वहां से फोन रिंग हो रहा है, बहुत वीक फील हो रहा है बोल के। फिर मुझे थोड़ा सा दुख तो लगा। फिर वो लोग आए और फिर ये बोले कि एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हुए आओ बोल के। और वो टेस्ट किए और आए और जब आए तो मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा हीमोग्लोबिन क्या है बोल के। तो वो बोल रही है कि 8 ग्राम है बोल के वो बोल रही है। और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। वो सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो मुझे फिर से ब्लड लगेगा बोल के, इतना वो वीक फील कर रही थी। वो शैतान क्या होता है ना, वो दिमाग को बिल्कुल भी वो नहीं ये बोलने देता कि नहीं तुम चंगे हो चुके हो बोल के। दिमाग को बोलता है नहीं फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी प्रॉब्लम है बोल के। पर वो प्रॉब्लम नहीं होता है। वो जो परमेश्वर है, जो यीशु है, जो पवित्र आत्मा है, वो सब कुछ ठीक कर चुका होता है। और जब क्योंकि ये हमें देखना भी था, वो प्रेयर का रिजल्ट वो जो भी देखना था ना आज, इसलिए वो आए। शैतान का तो चालाकी अलग प्रकार का होता है, पर परमेश्वर का जो महिमा होने वाला होता है ना, वो उसके थ्रू भी होता है, शैतान के थ्रू भी होता है। तो उसने जैसे फील किया वो आए और हीमोग्लोबिन टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए और हीमोग्लोबिन 8 ग्राम हो गया, जो पिछले बार 6 से भी नीचे था। ब्लड देना था क्योंकि वो सिकलिंग पेशेंट तो उनको आयरन भी नहीं दे सकते थे, कुछ भी वो नहीं खा सकती थी, सिर्फ खाने के द्वारा ही जो कुछ आयरन उसे मिलेगा वही से। तो इस बार जब उनको पीरियड ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था और बहुत वीक हो गई थी। तो वो बिल्कुल भी सोची नहीं थी कि मुझे फिर से ब्लड लगेगा बोल के वो सोच रही थी। पर परमेश्वर महिमा पाए, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो दिखा दिया वो दिखा दिया कि वो क्या है और वो कैसे हमारे साथ होता है और कैसे वो सब कुछ कर चुका है और सिर्फ हमें मुंह से सिर्फ बोलना है बोल के। और कल हम बोले और वो सब कुछ आज रिजल्ट में देखने को पाई। मैं और मेरे हस्बैंड इतने खुश हो गए कि मैं क्या बोलूं। और उनको भी मैं बोली कि नहीं तुम क्लेम करो, उसने तो प्रोमिस कर चुका है, ये दे चुका हूँ, अब तुम उसको क्लेम करो, मैं ले चुकी हूँ, वो सब मैं ले चुकी हूँ बोल के। और परमेश्वर के लिए तुम्हें काम करना है, इसलिए बोलो मुझे बिल्कुल ठीक होना है क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगी बोल के। और वो करती भी है। वो बहुत ही वो अदर कास्ट के लोगों में परमेश्वर के वचन बोलती है, इस तरह बोलती है कि वो जैसे वो एक हिम्मत के साथ वो बोलती है कि नहीं तुम्हारा मेरा जो परमेश्वर है
वही सच्चा है, ये सब कुछ करता है, तुम एक बार चख के देखो बोल के ऐसे बोलती है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रेयर भी करती हूँ कि उसके द्वारा और अपना महिमा ले और बहुत सारे आत्मा को अपने लिए लाए परमेश्वर। और एक गवाही देती हूँ, मेरा भैया का तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं था। हमारे जो कोऑर्डिनेटर ब्रदर हैं शुभ्रांशु, तो वो ब्लड टेस्ट किए हैं बोल के जब मैं सुनी तो मुझे थोड़ा सा मुझे ये लगा कि क्या वो निकलेगा क्या नहीं बोल के। पर कल हमको बातें किए और मैंने पूछा क्या हुआ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा सब कुछ नॉर्मल है। हर एक ब्लड जो रिपोर्ट आया है, जो कुछ भी मैं की हूँ, वो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, जितना क्या सब कुछ नॉर्मल है। और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि क्या बोलूं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो लोग परमेश्वर में रहते हैं उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और आज मैं दो खुशी को मैं पाई और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये टेस्टिमोनी भी उसकी महिमा के लिए मैं कर रही हूँ और परमेश्वर को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। आमेन आमेन, उसके लिए कि वो योग्य है। Amen, amen, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। amen, amen. प्रभुଙ୍କର महिमा ହଉ। ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳି ଦେବା। ଆଉ କିଏ? और हर एक की सिस्टर को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल हम सब प्रेयर किए थे, मैं वो भूल गई थी। आमेन। ଟିକି ନାନୀ, ହଁ ଟିକି ନାନୀ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବା। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। समस्त प्रेज द लॉर्ड। सालम। मुझे भाबुଥିଲି काली देमी बोलिकरी किंतु दे ने पारली। अच्छा, प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए मते सुजोग देछन बोलिकरी। आ मोर गुटे टेस्टिमोनी अछि। जेतेबेले मुई बाहाला आगोरु माने बाहाबार पूर्वरु मी छुआ मन को बहुत भल पाउथली। बहुत भल माने घरे जानी छन मोर गुटे वीकनेस थिला छुआ मन कर प्रति कि से नानी छुआ माने हो माने हम जते क्वार्टर से रहउथनु बापा जले चाकरी करथिले त साई पड़िसा छुआ माने भी मोर पाखे सब बेले आसन ओ मोर पाखे सब बेले मोर बिना भी से माने नहीं खाउन मते देखले खाइबे एंता सब किछि एने सब थिला। तो दिन थोरे तो किंतु मैं बाहा हैला परे मोर बाहा हेबार प्रथम वर्ष तो गला, सेकेंड वर्ष गला किंतु मते तळे मोर छुआ पिला नै हला मत किछि नै हला म्हणजे सेतळे हम बहुत ट्रीटमेंट करलु। मु नागालैंड रे जाइक थिली, मु नागालैंड रे थिली, नागालैंड को बाहाई जाइथिली सेतळे हमें सेठी थिलु किंतु प्राय वर्षे देखलु किसी ने हला 2 वर्ष को देखलु तापर बहुत ट्रीटमेंट भी चलला कहीं गुवाहाटी नागालैंड दीमापुर सब विषय तापर आसिक संबलपुर बुर्ला एंते सब ट्रीटमेंट चलला किंतु मते किछि हला नै। तापर थर्ड वर्ष रे सेतेबेले फोन तो नै थई, फोन नथिला, चिट्ठी द्वारा समस्ते माने कथावार्ता करथिले सेते जीजेस कॉल्स थिले सेते डीजेएस दिनाकरन सेते थी बाटे लिखले कि हमर किछि इशू हिने ता सेंती माने किछि प्रॉब्लम अछि बोली तो तापर साडू रिजल्ट माने रिप्लाई आसला कि तो माने माने सारा रो विषय रे दिया हितला हाना रो विषय दिया कि माने कहले कि तुम सबले उपवास प्रार्थना करो। तापर मोर भी चलला सेंती उपवास प्रार्थना आमे भी बहुत लोगों को बहुत कथा सुनिथिलु बहुत ही थिला तथापि आमे धैर्य सह प्रभु को निकट रे मागलु किंतु एंती चली 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 तापरे प्राय गोटे वर्ष हे नै आ तापरे मैं कनसीव कली सेतेले पन्नी मो नंद समस्त मो संगे थिले तो कहन लगी पन्नी आमे जते फास्ट मंथ रे मोर पीरियड थिला
कि सब मोर पीरियड्स डेट पूर्वर मुझे जाऊली 2 दिन 4 दिन के 7 दिन 5 दिन एमती तो सेई मास रे कहला पनी थिला पनी भी मोर संग रहउतला मोर नंद भी रहउतले सेई मास रे कहला कि गोटे दिन मात्र गोटे दिन माने पार ही गला बोले आमे समस्ते टिके आश्चर्य हो गलु काहला का केमती हला का मैं आसिक पनी की कहली मोर नंद कहली मोर स्वामी के भी कहली तब मोर ये कहले हां देख काना होची बोली के मते ये कहले तापरे कौन हला कि तोर गोटे मास बीती गला 2-4 दिन जाइए मात्र 2-4 दिन जाइए आमे टेस्ट कलु जे पॉजिटिव बाहला बुझली तापरे पॉजिटिव बाहला परे ता नेक्स्ट मंथ रे पुनी ब्लीडिंग स्टार्ट हला पुनी ब्लीडिंग स्टार्ट हला बेले आमे टिके डरी गलु समस्ते पनी थिला मोर नंद भी थिले आउ ये भी थिले आमे पनी मुई नंद हेकरा 3 जण प्रार्थना कलु बहुत प्रार्थना करछु तापरे तारपरे पनी मुई आमे सब कांदी कांदी बहुत प्रार्थना करछु प्रभु को एते कष्ट रे प्रभु गोटे देउथिले किंतु एबे कोन हबो बोली कि तापरे हम डॉक्टर को फोन कलु डॉक्टर कहले कि आ किछि चिंता नै तमे आसो तापरे हम गलु तापरे फिर टेस्ट कलु फिर पॉजिटिव हला जतले तापरे डॉक्टर कहले एंती घबरावार किछि नै एंती हुए तापरे हमें तथापि तापरे आसिलो तापरे जानलु के पॉजिटिव अछि तापरे हमर घर बहुत खुशी हलो समस्ते एंती कि घरे भी संबलपुर रे भी माने हीराकुद रे सेतल थिले हीराकुद रे भी हम समस्त को जणैलु समस्त खुशी हेले आउ तापरे प्रभु को बहुत धन्यवाद देलु सेतले बहुत धन्यवाद देलु प्रभु नि तू मोर सबु विनती निवेदन सबु सुनले मोर प्रार्थना सुनले सेतले ना ये जाइकरी तळे मोर स्वामी भी जाइकरी कॉलेज रे तळे टेस्टिमनी देले प्रिंसिपल कहले कि एटा तोमर प्रार्थना माने से माने भी हमले प्रार्थना करथले से माने कहली तोमर प्रार्थना आमर प्रार्थना सार प्रार्थना सुनी करी प्रभु उत्तर देछ बोली से माने से ठीक कहले आ प्रिंसिपल जते शिक्षा देले आ हमकु कहले हम समस्त तापरे जो माने मते माने छुआ पई बहुत किछि कथा कहतले से माने भी आसिक मते कहले तू बहुत प्रार्थना करलु तू तो प्रार्थना लागी आज तू पाइलु छुआ बोली करी मते से स्त्री लोक माने से रियलाइज कला आ कला कि देख तोर प्रार्थना ही तोते आज ये करी माने प्रार्थना रु उत्तर पाइछ तो प्रार्थना ही तोते आज तोर अभाव अछि मते से कहला तापरे हम समस्त प्रार्थना कलु आ रहलु तापरे वर्ष पाटवा किछि दिन पर तोर मोर छियो जन्म हला समस्त जानि छे ओसिन जन्म हला बेले तार गोटे हाथ रे गोटे अंगूठी दुईटा पाखुली थम जोटा बुढ़ा अंगूठी गोटे राइट साइड रे तार क्रॉस चिन्ह थिला लेफ्ट साइड रे स्टार चिन्ह थिला बुझ पछन तो आमी जंतल जन्म हला समस्त देखन हीराकुद रे नानी घरे थिले जेंति हमर पास्टर रंजन पनी निनी समस्त जानि छ ले ओसिन तो गोटे साइड स्टार आ गोटे साइड क्रॉस चिन्ह थिला सेतले हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देछु हमरे प्रार्थना लागि हमरे अभाव पूर्ण करथिले बोली के आ समस्त जानि छ ए आमी जो हीराकुद जाइतलु सेतबेले बे कथाटा पड़थिला मी सेतबेले बे टेस्टिमनी देइथिली रंजन माने थिले समस्त थिले आ प्रभु को बहुत धन्यवाद दे ए टेस्टिमनी लागि आ ओसिन लागि सबोले प्रार्थना करूछन बोली के समस्त को जेतकी अछन सिलो परिवार सब भोणी मान को मुई नहीं जुड़ले भी बोले प्रार्थना करछन बोली के धन्यवाद दो छे प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दो छे प्रभु को नाम गौरव हो महिमा हो प्रशंसा हो आमे समस्त जेपरी आमे तांकर लाइफ रे तो बहुत किसी टेस्टिमनी अछि किंतु देई तो पारु न किंतु आज ए सुजोग देछन प्रभु मते कहबा लागि आमे कहि पारी से बोली के समस्त को धन्यवाद दो छे आमेन प्रभु
ତାଙ୍କର ମହିମା ହଉ ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ନାନୀ କେତେବେଳେ ତାର ଟେଷ୍ଟିମନି ଦବା ବୋଲି, ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଓସିନ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ବୋଧେ। ଆଉ 5 ଓସିନ ବର୍ଷ ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ। 5 ହଁ କନସିଭ କଲି 5 ବର୍ଷ। ତ ଓସିନ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆଉ ଓସିନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହୀରାକୁଦରେ, ନାନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ତାର ଷ୍ଟାର ଥିଲା ହାତରେ, ଆଉ କ୍ରସ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚୁଜନ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ହଁ ପନି ଆଉ ପରମଜିତ 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ବୋଧେ। ହଁ ପନି କହ। सलाम टू एवरीवन। परमेश्वर को मैं हेलो। बहुत ही धन्यवाद देती हूँ सच में आज के टेस्टिमोनी के लिए। सॉरी पहले बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं जुड़ी थी, स्मृति बेटी की टेस्टिमोनी सुनी और फिर मेरा एक फोन आ गया तो मैं कट गई थी। और टिकमा का टेस्टिमोनी मैं सुनी। सच में उस दिनों के बारे में मैं सोच के परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उस समय हम लोग कैसे थे, प्रभु में इतना नहीं थे होने से भी प्रभु हमारे सब प्रार्थना को सुन के उत्तर दिए और ओसिन को इस दुनिया में भेजे हैं। वो प्रेयर का रिजल्ट ही है। और ओसिन के लिए जो प्रभु का योजना है, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। जो प्रभु जिस योजना के कारण उसको भेजे हैं, वो जैसे फुलफिल हो सके। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सब जानते हैं मेरे बेटी और बेटा दोनों 10 तारीख को बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हो गए हैं। उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए और प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ उस विषय के लिए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जितने सिलो हैं सब आइए 10 तारीख को, और हम सब मिल के जैसे प्रेयर में जुड़ेंगे और प्रभु का आशीष लेके जाएंगे, वैसे ही हम सब को प्रभु आशीष दे। और सब जरूर 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 आइए, ये मेरे तरफ से सबको इनवाइट मैं करती हूँ। मेरे सिलो के जितने जन जुड़े हैं और नहीं भी जुड़ पाए हैं आज, सबको बोल रही हूँ मैं। और प्रभु के नाम के धन्यवाद देती हूँ। और कल क्यों मैं नहीं जुड़ी थी, आप सबको शायद पता होगा। हमारे यहाँ एक मेरे चाचा, पास के चाचा हैं, उनका डेथ हो गया था, तो मैं कल नहीं जुड़ पाई। और हमारे सिस्टर विस्मिता को बोल दी थी कि प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए बोल के। ऐसा ऐसा बात है, उस शोकित परिवार के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज रात को ही मैं हीराकुद के लिए निकल रही हूँ, 9 बजे बस है, तो मेरे लिए भी प्रेयर करेंगे जैसे मैं सुरक्षित वहीं पहुंच जाऊं। आमीन। आमेन आमेन। आसंती टेस्टिमनी लगी प्रभु को धन्यवाद बा। परमजीत सिस्टर बोलिए। हाँ जी सिस्टर जी, सबको शालोम। मैं शालोम परमजीत शालोम। बोल रही हूँ। सिस्टर जी कैसे, क्या कल हम लोगों ने हीराकुद के लिए निकलेंगे तो मेरे आज थोड़ी तबीयत, थोड़ी वाह ब्लड वाह, प्रेशर थोड़ा सा हालेलुया। हाई यस हो रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा जैसे मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह तबीयत सब नॉर्मल रहे और मैं ठीक ठाक से पहुंचूं, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। आमीन। आमेन आमेन। जी सिस्टर जी आइए, मैं भी बहुत खुश होंगी। हाँ जी आ रही हूँ सिस्टर जी। थोड़ा सा जी थोड़ा जी थैंक ब्लड यू। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो मैं ऐसे दवाई खा ली हूँ, लेकिन प्रार्थना कुछ थोड़ा सा नहीं मेरे होगा, लिए कुछ नहीं किएगा कि मैं होगा। ठीक कुछ ठाक नहीं होगा। पहुंचूं। वो कुछ नहीं सिस्टर, आप आ रही है करके आपका ब्लड प्रेशर ऐसा हुआ है, उसका चिंता मत मैं करिए। एक फिर और एक टेस्टिमनी भी दे, यहाँ नहीं दूंगी, कल हीराकुद में दूंगी। बहुत बड़ा टेस्टिमनी होगा वो। हाँ जी ठीक है, ठीक आपको परमजीत सिस्टर भी हाँ टेस्टिमनी देंगे वहां जाके। हाँ जी जरूर दूंगी। आमीन आमीन। हाँ जी आमेन। आमीन। सबको दीपिका माँ। शालोम। आप सभी को शालोम। मैं शालोम भी आज शालोम। के टेस्टिमनी से बहुत आशीषित हुई हूँ। सभी का टेस्टिमनी सुनी
हूँ। सबको प्रभु आशीष दे, उस टेस्टिमनी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी बेटी आंशिका को कोल्ड हो गया है, थोड़ा सर्दी हो गया है और मेरी बड़ी बेटी को भी हुआ है और हम पूरे परिवार के लिए प्रेयर कीजिए, हम जो से स्वस्थ रहे। और मेरे भतीजा का बर्थडे है आज, उसके लिए प्रेयर कीजिए। आमीन। आमेन आमेन। ଟିକେ ନାନୀ କାଣା କହୁଥିଲ? हाँ मोर गोटे प्रेयर रिक्वेस्ट अच्छे। अच्छा उस दिन 19 तारीख गोटे जगह के जीवा बिहार सॉरी रक्सल हॉस्पिटल जीवार अच्छे ताले एटी प्रेयर करबे। से आमे समस्त जाऊ छु तो प्रेयर ठीक करबे। आ जेंता प्रॉब्लम ओसिन रो फ्यूचर लगी, ओसिन रो सब किछि लगी टिके प्रेयर करबे। इति के टिके ठीक। नानी बड़ नानी शिविका नानी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲ ତାହେଲେ ये एक घंटा प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृତରେ 10 जन सुस्थ हेले किंतु जणे आइला हेटा सुनिक मोर जीवन केनता लगीगला। हेती लगी मु बाध्य होइकी साक्ष्य देबा के चाहूचे। प्रकृତରେ मु तो सिलो दादी है किंतु प्रभु मते बहुत बहुत आशीर्वाद करिछन आ बहुत सहवर्ती प्राय घर लोक समस्ते जानिथिबे मोर 2014 रे पैरालिस हो जाइथिला। से दिन घटना टी खाली मु कहबाकू चाहे काहे ना प्रभु को धन्यवाद देवा जरूरी। आ से महिमा पांतु, से गौरव पांतु, तांकर प्रशंसा हो, तांकर स्तुति हो। डिसेंबर 29 तारीख रो घटना आमर ए हीराकुद कृष्णपड़ा रे गोटे झीलटी जे कि रंजन और पनीर बहुत माने पाख झका काना कहा जा से दिजन जाक बहुत प्रेम करंती से छुआ को। तार निर्बंध थिला किंतु रंजन पास्टर रो जीवार थिला 30 तारीख, निर्बंध होउची 29 तारीख। निर्बंध को मु भाबिथिली एमान समस्त जीवे, तापर जानली जे पुओ जाउनी बहु भी जाउनी, तापर आमको जीवा को पड़िबो। से समय रे मु बसी की बहुत गाली देइथिली जीसु बापा को। कहली जीसु बापा ई छुआ माने केनता ई काना रेता निर काना रेता ना और की एते भल पासन आ रंजन तो नहीं गला बहु के मना कर देला जे मुई खुशी आ मोर जा है कि जिमु इटा केनता कथा माने भल नहीं करबा, रंजन भी भल नहीं करबा कि इति भी भल नहीं करबा कहि कि मुई से दिन से मान को गाली भी देइथिली। आ तापर आमे बाहर की गलु 29 तारीख निर्बंध हला, खाई पी की आइलु। 30 तारीख बाबू बाहरुची ठीक से समय रे मते बांती आरंभ होला। ठीक मोर बांती करबा समय आ बाबू देखि देबा समय मां का हला बोले किछ नहीं तोर जीवार से ती जा। तापर से पळे तार बॉम्बे जीवार थिला, मीटिंग थिला। इटा होची 2014 डिसेंबर 30 तारीख रो घटना। से चाली गला पर मोर देह बहुत बिगड़िला, खाली बांती। से दिन डिसेंबर 29 थिबारु चर्च रे बहुत किछि प्रोग्राम थिला। सीएनआई चर्च रे अवश्य मु जाए, से दिन जाई नथिली। तापरे बहु देखला एमती हेची, मोर पुत्रा को फोन कला। से आसले मते हमर कंपनी रो डे केयर को नेकी बोली। से डे केयर रे मते इंजेक्शन कोन सब दउ थांती किंतु मोर होश थिला दउ थांती किंतु लास्ट समय रे मोर ब्लड प्रेशर हाई हे गला आ सेही समय रे मोर ब्रेन स्ट्रोक हे गला आ मते पूरा झाड़ा हे गला। ता माने से बेड रे झाड़ा हे गला। मु जानी देली मोर झाड़ा हे गला, गोटे गोड़ बेले बाम गोड़ आउ अंटा थु नहीं चलला। तापर मु भाबिली ये बाबा मते झाड़ा हेगला, मो पुत्रा आसन करे लाजर कथा झाड़ा हेगला, एटा केमती करबी। तापर मो पुत्रा कहली काकी
ତମେ ତ ସାନ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲ ହେଥିଲାଗି କାଣା ଅଛି କିଛି ନାଇଁ ଭାବ। ତାପରେ ମତେ ଅଣାଗଲା ସଫା ସୁତରା କରାଗଲା ଘରେ। ଆଉ ବୋହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟୁଗଲୁ ପାଷ୍ଟ ଏ 2 ଜଣ ଧରିକି ମତେ ବୁର୍ଲା ଗଲେ। ବୁର୍ଲାରେ ବି କହିଲେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ବାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ନାହିଁ। ଏ ମା ସମ୍ବଲପୁର ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନେଇଯାଅ, ନାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମତେ ନିଆଗଲା। ମୁଁ ଠିକ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଡକ୍ଟର ଆଇଛନ୍ତି। ମତେ ଠିକ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋର ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସେତେବେଳକୁ ବାବୁ ଯାଇଛି ବମ୍ବେ, ବୋହୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଛୁ। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଏ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ବହୁତ ଚାରିଆଡେ ଫୋନ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୋ କହିବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ଖାଲି ମନେ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ପୁଅକୁ, ଆଉ ବୋହୂକୁ ତ ଗାଳି ଦେଇନଥିଲି, ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି ଏମିତି ହବ, କାହିଁକି ଏମାନେ ଯିବେନି ସେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘରକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମର ସେ କହିବାଟାକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଲୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ ଦାଦି, ମୁଁ Amen. ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ Amen. Glory to ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Jesus. ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁ କାମ ବି Amen. କରିପାରୁଛି। Amen. Amen. ମୋର ଏ Amen. ଯୋଉ ବାମ ହାତର ଏ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡି ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ମୁଠା କରୁଛି, ସବୁ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ସିଲୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବିନି। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ପରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ କହିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳିଟେ ଦେବା ଆଉ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମನುಷ್ୟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ସଂକଟରୁ, ବହୁତ ବିପଦରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଷ୍ଟୋରି ସେ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହବୁ। ନାନୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 7ଟା ବାଜିଯାଉ, ରାତି 8ଟା ବି ବାଜିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ହେଇଛୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇବେ, ପୁରା ଆତ୍ମୀୟ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀଷ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କି ହଁ, ଲଭଲି ସିଷ୍ଟର, ଲଭଲି ମା, ହଁ ଫୋन करो बेटा। हाँ लवली माँ, प्रभु देखिए का मैंने सलाम। सलाम अम, सलाम। आज मेरा भी मन कर रहा है उड़िया में बात करूं। हाँ, तो इतना अच्छा उड़िया में मतलब उड़ीसा का याद आ बोल गया मेरे दीजिए को सिस्टर। बहुत। और मैं ये ओडिया मेरा ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ प्रेयर କୁହ। ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ହୀରାକୁଦ କୁ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋର ପାଇଁ ବି ଟିକେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁକୁ ମହିମା କରିବି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ପ୍ରେୟାର ବି Amen, ମୋର amen. ପାଇଁ ବି दिल से प्रेयर पूरा रिक्वेस्ट। इच्छा है लवली सिस्टर आपके लिए, सच में मैं प्रेयर भी थैंक यू। कर रही थी। आइए आइए, मेरा बहुत जरूर मन आइए। है और सब इकट्ठी होगी तो मैं यहाँ हाँ, क्यों रहूंगी। सब आइए, तो प्रभु करे सबको लेके इसलिए आने आया है। यस आमीन। तो मेरे लिए ये रिक्वेस्ट रखिएगा सिस्टर। थैंक यू। ହଁ, ବୋଧେ ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ହଁ ସାଗରିକା ମା, ଆଉ ସାଗରିକା ପାस्टर। जी, मैं सब गवाही से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। प्रभु सबको आशीष दे और ये गवाही के द्वारा सबके जीवन में प्रभु अपनी महिमा दिखाए, काम करे। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट ही है माँ,
मैं देना चाहती हूँ। उसको थोड़ा सा नोट कर दीजिए तो, क्योंकि थोड़ा हाँ, लंबा है प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं ग्रुप में छोड़ी थी क्योंकि वो सब अर्जेंट वाला प्रेयर रिक्वेस्ट है, इसलिए आज बोल रही हूँ। अ, गंगा करके हमारे लामीदारा से है, उनका एक साइड पैरालाइज हो गया है, उनके लिए प्रेयर करेंगे, रेगुलर प्रेयर भी करेंगे। रेखा करके वो बालूदा बाजार की है, छत्तीसगढ़ स्टेट के, उनका डबल ऑपरेशन हुआ है उनका अंतड़ी का। तो वो बहुत ही क्योंकि नॉन बिलीवर से है और बिलीव भी कर ना कणा कोलो रेखा रेखा रेखा। अच्छा, तो वो मुझे ठीक होना है दी करके वो जिस रीति से मैसेज की थी, उसके लिए मुझे बहुत ये लगा, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और एक नाम है अनुरामा बघेल करके, उसका टोटल बॉडी पेन होता है और वो खुद बोल रही कि शैतानी काम से वो ग्रसित थी करके, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे डिलीवरेंस के लिए। फिर दिलदास करके एक भाई हैं और उनकी वाइफ है, तो वो दिलदास वो खुद बोल रहे हैं कि वो शराब की नशे में, मतलब वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो जाता है संगति में कि वो फिर से ले लेते हैं, तो जैसे उनका मन वहां पे ना लौटे और वो कंप्लीट डिलीवर हो जाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और उनका परिवार के लिए प्रेयर करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और एक नाम है ममता करके, वो भी रायगढ़ से हैं, उनके लिए वो बोलती हैं कि जो भी वो जॉब करती हैं वो परमानेंट नहीं होता, कुछ दिन बाद छूट जाता है उनका, परमानेंट जॉब के लिए प्रेयर करेंगे। फिर और एक नाम है लिखिए रायगढ़ से, वो भी है उमा और उनके हस्बैंड, उनके लिए प्रेयर करेंगे कि वो दो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जैसे सही रहे। और एक नाम है आरती बेटी, जो कल गवाही देना चाहती थी, उसके लिए प्रेयर करेंगे क्योंकि वो अकेले उसके घर में विश्वास करती है। वो उसके घर वाले उसके जीवन में जो प्रभु का काम हुआ है देखे हैं, इवन वो बोले भी थे कि वो सब छोड़ देंगे प्रभु में आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखते हैं अपने साइड वालों को और वो झुक जा रहे हैं, तो उनके फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे, खास करके उसके पापा के लिए। अच्छा, और आज लामीदारा फेलोशिप भी है, पास्टर जी यहाँ आए हुए हैं, आज लामीदारा फेलोशिप के लिए प्रेयर करेंगे। फिर पास्टर जी का जो रिटर्न जर्नी है और कल का जो भी प्रोग्राम है, हम भी जो जैसे अच्छी रीति से पहुंच नहीं पाए, और सब कोई मोस्ट ऑफ हमारे सिलो परिवार जर्नी करेंगे हीराकुद ब्लेसिंग होम के लिए, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। हाँ, ए जन कहलो रेखा काना तांकर काना ହେଇଛି कहलो तांकर अतिपुटा अंतड़ी, अच्छा, हाँ सेटा सुखी जाइतिला, तो डबल ऑपरेशन ହେଇଛି सेटा। अच्छा, हम्म हाँ स्मृति माँ कहो। मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी। मेरा बड़ा भाई जो स्मित है वो भी 10 तारीख को बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार है, और उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती कांता सिस्टर बोले। प्रेज द लॉर्ड, शालोम सबको। धन्यवाद। मिश्र की महिमा हो। मुझे उड़िया सुन के मेरा भी दोबारा अपना बड़बिल याद आ जाता है। उड़ीसा में रहती थी काफी सालों और बहुत अच्छा लगता है, पर आप अब जो बोल रहे थे कुछ कुछ तो नहीं समझ आता, पर मोस्टली थोड़ा समझ तो आ जाता है। और अच्छा लगा मुझे बहुत, तो अपनी पुरानी याद फिर आ गई और मैं बहुत ब्लेस हुई सबकी गवाहियों से। और सबको ब्लेस करे कि आप सबको जा रहे हैं, परमेश्वर हम प्रे करेंगे सबका जर्नी ठीक से रहे और अच्छे ब्लेस लेके आए सब कोई। हमारे लिए भी प्रार्थना वहाँ भी करें कि हमारा भी जो पुरानी रिक्वेस्टें पूरी हो जाए। और मेरी एक फ्रेंड है सिस्टर जी, उसका नाम विजय शर्मा है, वो उसको भी ना स्किन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और बोलती कि मेरे भी कुछ तानी है उसके बीच में। इंडिया गई थी, इंडिया से कुछ बोलती है रिलेटिव है, कुछ ऐसे ऐसे बोलती, घर की उलट पुलट हो गया। उसकी बेटा भी बाहर, बेटा हैप्पी है, वो भी छोड़ के चला गया घर,
बहू से अलग हो गया, बेटी की जॉब नहीं लग रही, उसकी बेटी का नाम है प्रीति, और घर में उसके हस्बैंड है शर्मा है, दोनों हस्बैंड वाइफ का भी खर्चा नहीं देता, और वो भी काफ़ी 60 की हो गई है, और वो भी मतलब उलट-फुलट हो गया सारा कुछ, थोड़ा प्रे करना उनका। पहले पूरा विश्वासी थे, अच्छा से बपतिस्मा लिया हुआ था, पर पूरी फैमिली है इसलिए उन्होंने अभी थोड़ा फिर थोड़ा सा पीछे हो गए कि क्या को वो बोली, खुद बोलती है जो देवरानी ऐसे कुछ बोल रही थी कि शैतानी है हमारे ऊपर में, ऐसे बोली कोई शक्तियाँ हैं। तो अब सबके लिए प्रेयर करना, और मेरे परिवार के लिए भी करना कि हमारे परिवार में भी फेलोशिप भी हो। जैसे आज सब मैं सुना तो मुझे कि हमारे घर में भी तेरी महिमा हो परमेश्वर की, मिलके सारा परिवार महिमा Amen. करे। वो कि हमारी परमेश्वर जानता खुदा कि हमारे घर में सब परिवार मिलके महिमा करें, और सब नशे छूट जाएँ, और झमेले खत्म हो जाएँ। विश्वास अविश्वास का विश्वास में आ जाए मेरी बहू Amen. मिलके। जो सिस्टर जी ने बताया था पहले कि हमारे मैं बोलती थी कि मेरे घर में फेलोशिप में मांगती थी वो फर्स्ट वाला ने, तो वो मैंने बोला मैं तो कभी ऐसा बोलना नहीं आज है। मैं कब आप प्रे में रखिएगा। हाँ जी, गॉड ब्लेस सिस्टर जी। Amen. हाँ गौरी माँ कह। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲୁ ମୋର Amen. ପ୍ୟାରେ ହେଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ନାନୀର ପୁଅ ସାଇ, ସେ ସ୍କୁଲ ନା ଧରିଲେ ଆକା ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ବୋଲି କହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ अच्छा ମୋ ମା ପ୍ରମିଳା, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। Amen. हाँ ठीक ଅଛି। हाँ लिपिका। हेलो, प्रेज द चलो। लॉर्ड। स्पेशली मेरी बेटी के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिएगा। उसको थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसको खांसी हमेशा लगा रहता है, और थोड़ा सा सीजन चेंज हो जाएगा या फिर बारिश हो जाता है तो पूरा खांसने लगती है बहुत, रात में सो भी नहीं पाती है, तो उसको थोड़ा प्रेयर में रखिएगा जिससे वो वहाँ से रिकवरी कर सके। निश्चय निश्चय। हाँ, चिया ना। सिया हाँ सिया चिया। अच्छा ଆଉ ତ ହେଲା ନା ଏତିକି ଆଉ କାହାର ଅଛି? ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସହସ୍ମିତା ସିଷ୍ଟର। ସମସ୍ତେ କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାରତୀ କି ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଆଉ ଡମଣୀ ନାନୀ କି ଜ୍ୱର ହଉଛି। ନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦେବେ। କିଏ ନା କଣ? ମୋ ଝିଅ ନା ଭାରତୀ, ଭାରତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ବଡ ଦିଦି ନା ଡମୁଣୀ, ଡମଣୀ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ତ ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ବି 3 ଦିନ ହେଲା ଉଠି ପାରୁନି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ମୋ ନାଁରେ ବି ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ସସ୍ମିତା ତ ନା ସୁନିତା ସୁନିତା। ସୁନିତା ମୋ ଆଚ୍ଛା ନାଁ ସୁନିତା। ସୁନିତା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନା ଭାରତୀ, ହଁ ଆଉ ଝିଅ ନା ବଡ ଆଉ ଦିଦି ନା ଡମୁଣୀ ଦିଦି ନାନୀ। ନା ଡୋଳାମଣି। ଡମୁଣୀ ଡମୁଣି। ଡମୁଣୀ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଠିକ। ସମସ୍ତେ କି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଆମେ ଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି। ଆଜି ସକାଳେ ମତେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବୁଲଉଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବୁଲଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଇଏ କହିଲେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରେୟାର ଆଗରୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କରିବି ପ୍ରମେଶ, ମତେ ଏତେ ଆଜି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ଲାଗି
ये सब घटुची शैतान जानी पारनी से चोर किछि जानेनी कि प्रभुଙ୍କର महिमा किपरि हमर द्वारा हेई थाए आ प्रभु गोर महिमा पाती आउ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ worship କରୁଥିଲି ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର महिमा ହଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଲାଗି ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ महिमा ଗୌରବ ଦେବା ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା ଆମେ 10 ମିନିଟ ଟଙ୍ଗସ୍ ରେ ପ୍ରେୟାର କରିବା आ तापरे लास्ट प्रार्थना हमर शिलो माँ पाखु जिबा आ समस्त तो प्रार्थना रिक्वेस्ट शुणी थिबे तथापि मु कहि दउची शिखा माँ देइथिले प्रेयर रिक्वेस्ट जो सब ना माने कहि दउची सब गंगा गंगा कहले ना शिखा माँ गंगा लगी आउ रेखांकर सब प्रॉब्लम आउ तापरे काना को भूली गली देखी से मेरा ममता ममता गुटे थिला बोले कि जे मुई भूली जाछ समस्त सुनी थिबे सब आसंत आमे प्रभु हमर सुनी चंदी जेतले प्रेयर रिक्वेस्ट समस्त देले परमेश्वर सुनी चंदी ए सब आउ आसंत आमे टंग्स रे प्रार्थना करबा आ टाइम हे जाउची प्रभु को नाम रे यीशु को नाम रे प्रार्थना करूची प्रत्येक प्रभु तांकर अग्नि द्वारा पवित्र आत्मा पर द्वारा समस्त को गाइड करते आ प्रत्येक को प्रभु अनुग्रह करचंती तेणु प्रभु को नाम महिमा हो गौरव हो हालेलुया आमेन अल्लाह रबा सुंदर रबा खबा रबा खबा दिखांदर रबा रीला रबा 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 सुंदर रबा रबा खबा रबा ओ दिला रबा ओ सुनाला रबा उग्राना रबा उद्री कृष्ण रबा अत्रीला रबा सुंदर रबा सुंदर रबा रिबिस खंबला रबा अत्रीला रबा रबा सुकोर मी खांद्रीला रबा सुकोर सुकोर बिस्ता रबा अरीला रबा रबा सुकोदुर मेरी किसी कतरीना रबा सुकोर
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. भगवान का नाम धन्य हो परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना के बाद ओ धन्यवाद बस हो परमेश्वर तुम्हारे नाम को धन्यवाद धन्यवाद तुझे आमेन 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 ऐसा था विस्मिता माँ पाखना विस्मिता माँ अच्छा क्या हाँ मैं लास्ट प्रार्थना को जीवा विस्मिता माँ Shalom everyone. सभी को shalom. ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବାର ଥିଲା ମୁଇଁ ନାଁ ଲେଖିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଡୁଙ୍ଗିକିନା ମତେ କିଛି ଦେଖା ନାଇଁ ଯିବା କାହାରି ନାଁ ଦେଖା ନାଇଁ ଯା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦିଶଲା ନାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେନ୍। जी प्रभु का महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद दोची प्रभु का महानाम का मैं बहुत अच्छे धन्यवाद करती हूँ। और हमारा ये टेस्टिमोनी सेशन का सेकेंड वीक भी आज खत्म हुआ। कल फिर डिक्लेरेशन प्रार्थना है। सारे टेस्टिमोनियों से हम सब आशीषित हुए हैं। मैं भी बहुत अच्छे आशीषित हुई हूँ। और ये टेस्टिमोनी सेशन के लिए मैं परमेश्वर के साथ साथ पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे लीडर्स लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ और सारे बहनों का माँ का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो जो हृदय में छिपा हुआ जो बात था, दबा हुआ जो बात था, वो प्रभु को महिमा देने के लिए वो सारा चीज निकल के किस रीति से आया। कोई भी प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं चुके हैं, वो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी लगे, कोई भी इमोशन हो, लेकिन ये जो काम हुआ है ये परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में हुआ है बोल के जो सबका गवाही के द्वारा सबने बोला है। ये चीज हम सबको मतलब जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है वही वचन के अनुसार हम सब उस पे जय पा चुके हैं। और वो लज्जित है, वो जो चोर है वो लज्जित है हम सबके गवाहियों से, आप सबके गवाहियों से। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत आज से धन्यवाद करती हूँ। और सबको मैं बोलना चाहूंगी शनिवार को जो पहले प्रार्थना कर देते हैं उसके बाद बोलूंगी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का ये सुंदर दिन के लिए, ये अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, समय कम पड़ जाएगा लेकिन आपका महिमा प्रभु वो बोलने के लिए प्रभु जी वचन में ये भी लिखा है कि यीशु के द्वारा जितने आश्चर्य कर्म हुए हैं वो अगर लिखा जाए तो रखने के लिए जगह नहीं होगा पृथ्वी में बोल के। इस रीति से प्रभु वही सारा आश्चर्य कर्म, वही मेरा प्रभु आपका ही, आपके बेटे का ही, आपके आत्मा का ही हमारे जीवन में जिस रीति से है। हाँ प्रभु जी, सच में ये पृथ्वी कम पड़ जाएगा कि हम अपनी गवाहियों को कहाँ पे रखें, लेकिन ये जो बोलने के द्वारा हम आपको महिमा दे रहे हैं, आप अपना महिमा हमसे ले रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक आपकी बेटी को आप आशीष करे और भी उसके जीवन में आपका बढ़ाई हो, आपका आश्चर्य कम दिखने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हर एक से हम किसी ना किसी रीति से जुड़े हुए हैं प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं कि हम भी उस गवाहियों का हिस्सा एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने रखा है आपके चरणों में प्रभु, हम जानते हैं ये आने वाले गवाहियों को ये उत्पन्न करने के लिए आपने ये प्रार्थना सुना है, और आप महिमामय परमेश्वर, आप प्रार्थना सुन के उत्तर भी भेजने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर भेज रहे हैं प्रभु। और वो सारा उत्तर जो आज मैनिफेस्ट हो रहा है आने वाले दिनों में और जोरों से वो दिखेगा प्रभु जी, और जोरों से आपके बेटे लोग प्रभु आपको महिमा देने के लिए प्रभु दौड़ के आएंगे, लौट के आएंगे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप कर रहे हैं हर एक के जीवन में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सारे विषय के लिए, सारे मेरे बहन लोगों के लिए, मेरे माँ लोगों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और विशेषकर प्रभु ये प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे सिलो परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, हाँ प्रभु जी, ये आफ्टरनून का समय में प्रभु आपके उपस्थिति में रहने के लिए कोइनोनिया का एक रिलेशनशिप आप हमें दिए हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस महीने का जो घोषणा आपने हमारे जीवन में किया है कि आपके साथ और भी गंभीरतम और घनिष्ठतम, हाँ प्रभु जी, रिश्ते को निभाते हुए प्रभु जी आपके साथ पूरी रीति से सहभागी हो जाना, एक ही भूत हो जाना, हाँ प्रभु जी, वो जैसे वो कोइनोनिया का रिलेशनशिप जैसे हम सबके जीवन में मैनिफेस्ट होने पाए प्रभु, ये महीने का डिक्लेरेशन के अनुसार आप अनुग्रह करें हर एक के जीवन में वो बहुतायत से दिखने पाए प्रभु, और हम आपको महिमा देने के लिए ना चुके, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हमारा अगवा के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं। आज का जो रायगढ़ का फेलोशिप है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, वो सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक हमारा जो प्रेयर सेल है, हर कहीं जो प्रेयर होता है, हाँ प्रभु जी, वो सभी जगह को समर्पण करते हैं प्रभु जी। और विशेषकर आने वाले 10 तारीख का जो प्रार्थना है और जो बपतिस्मा प्रोग्राम है, वो विषय को फिर से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपका बड़ा अनुग्रह से हर एक विषय प्रभु स्मूथली होने पाए, अच्छे से होने पाए, पूरी रीति से प्रभु आपकी ही आत्मा के द्वारा आप चलाएं, और वही पवित्र आत्मा ही कार्य करें और सब कुछ संभाले, सारा भार लें और वो एस्टेब्लिश करने पाए आपके नाम को हम जैसे, ऐसा अनुग्रह हम सबके जीवन में करें बोल के प्रार्थना करते हुए, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हमारे परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। चलो मधुआ, मैं बोलना चाहूंगी 10 तारीख का जो प्रार्थना है फास्टिंग प्रेयर है, सब कोई कोशिश करे कि आप आए जैसे, और ये